everyone. How are you all? I hope you all must be going very well. Today, students, we are here with a new chapter of class 5th, that is chapter number 10 about air and water. Means today we are going to discuss about the two necessary, essential factors for the survival of life. Right? As we all know, air and water both are the vital components for the survival. No living being can live without them. Okay. So now, what are these two factors composed of? Okay, and what are their uses, how they are very essential to us. Let's discuss about all these questions in this chapter today. Okay, let's start it. See, so all the living things on our earth need air to breathe and water to drink, wash, etc. Both of these elements are essential to sustain life on the earth. What they say, as I told you, कि सभी लिविंग थिंग्स को एयर एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ऑन द अर्थ टू सर्वाइव एंड टू लिव, राइट? तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे ये दो फैक्टर्स काफी एसेंशियल है। जैसे कि एयर की रिक्वायरमेंट है टू ब्रीथ एंड वाटर की रिक्वायरमेंट है टू ड्रिंक, टू वॉश एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस, राइट? So first of all, we are going to discuss about air. Air around us is a mixture of many gases and dust particles. So, हमारे अराउंड या सराउंडिंग में जो एयर है वो काफी सारी गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर है। एंड सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीथिंग, राइट? एयर हैज इनडेफिनेट शेप, यानी कि एयर की कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है। ओके, ऑल्दो इट हैज नो कलर, एंड ना ही इसके अलावा एयर का कोई कलर या स्मेल होता है। बट एयर हैज मास एंड वेट, लेकिन एयर का मास एंड वेट जरूर होता है। ओके, सो साइंटिफिकली इट इज अ टाइप ऑफ मैटर एज इट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो साइंटिफिकली एयर क्या है? एयर मैटर है बिकॉज एयर का मास होता है and also air occupies space. Okay, and anything around us which has mass and occupies space is known as matter. तो because ये दोनों ही जो properties है वो air के पास होती है, and therefore we can say that air is also matter. Now, atmosphere. You know that a layer of gas is commonly known as air surround our earth, and this layer of air is called atmosphere. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि एक लेयर है गैसेस की जिसे हम कॉमनली एयर कहते हैं। इसी लेयर ऑफ एयर ने हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, एंड वी कॉल दिस लेयर ऑफ एयर एज एटमॉस्फेयर। ओके, तो now we have the layers of atmosphere. So earth पे majorly there are 5 layers of atmosphere. कितनी? 5 layers है हमारे atmosphere की. Number 1, troposphere. Troposphere is the lowest layer of the earth atmosphere. Earth के atmosphere की सबसे lowest layer जो है that is troposphere, and ये सबसे closest layer है to the surface of the earth. Okay? All weather changes, जितने भी weather changes आते हैं वो troposphere layer में ही occur होते हैं। सेकेंड लेयर ऑफ अवर एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? इट इज अ सेकेंड मेजर लेयर ऑफ एयर, एंड इट इज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से जस्ट अबव जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ही फ्लाई करते हैं, एंड ओजोन लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओनली। ओके, then next we have mesosphere. Mesosphere is a region above the stratosphere. अब stratosphere से ऊपर वाला region को हम mesosphere कहते हैं, जो कि around 50 to 85 kilometers away है from the Earth's surface. And it has quite low temperature. And mesosphere पे जो temperature है वो काफी ज्यादा कम होता है. Because जैसे जैसे हम high जाएंगे, जितने high altitudes पे we will go, the temperature will start decreasing only, right? Then next we have thermosphere. Thermosphere is the fourth layer of the atmosphere. Okay, and ये extend करती है from 85 to 700 kilometers above the earth. Okay, the space shuttles orbit in this region only. Thermosphere layer में ही space shuttles जो हैं वो orbit करते हैं. And the last, we have what exosphere, which is the outermost layer of the Earth atmosphere. Earth atmosphere की सबसे outermost layer को what we call exosphere, जो extend करती है over thousands of kilometers तक, and has very thin density of air. Exosphere में बहुत ही thin, ना के बराबर density होती है air की. Okay,
See, the ozone layer absorbs 97 to 99% of the sun's ultraviolet light, which otherwise would burn us here on the earth. So, students, as we have discussed, ozone layer, it is a kind of protective layer in our atmosphere, which is present in the stratosphere layer, as we have discussed. तो ये ओजोन लेयर का काम है कि ये सन से रेडिएट होने वाली जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, उनको एब्जॉर्ब करती है। एंड अराउंड 97 टू 99% यूवी रेज जो है ओजोन लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करी जाती है। अदरवाइज हमारा जो अर्थ है, इट वुड हैव बीन बर्निंग अस हॉट। Okay. Now, next we have the topic of composition of air. So, as I told you, there is a layer of air around us, right? So, air is a mixture of gases. Air क्या है? Air बहुत सारी gases का mixture है. And सबसे ज़्यादा जो abundant amount of gas is present in our atmosphere, that is nitrogen, around 78%. Okay. Then 21% is oxygen and 0.03% is carbon dioxide. 0.97% is water vapor and the other gases. You can see in this pie diagram, they have shown you the composition of air. The abundant amount, सबसे ज़्यादा जो abundant amount में present है, that is 78% nitrogen. Then second most abundant gas is oxygen, around 21%. And this remaining 1% consists of carbon dioxide, argon, water vapor and other gases. Okay. Now, first of all, we are going to discuss about oxygen, which is the most important gas for all living things. Okay, सबसे ज़्यादा important gas जो है, that is oxygen gas, because survive करने के लिए सभी living things को we need what? Oxygen gas only. Okay, for breathing, they take in oxygen from the surrounding and release carbon dioxide in the atmosphere. Okay, so सभी living beings क्या करते हैं? Breathing purpose के लिए air में से oxygen gas को intake करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। एंड उसके साथ साथ बिसाइड दिस ऑक्सीजन इज आल्सो नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ बर्निंग। ओके, नेक्स्ट गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज नाइट्रोजन। तो लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ओके, एक्चुअल में प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज करते हैं सबसे पहले। Plants get this nitrogen from the soil where it is fixed by the nitrogen fixing bacteria. Okay, so plants को ये सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ से मिलती है? वो सॉइल से मिलती है। एक्चुअल में सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इट्स नेम इज राइजोबियम। ओके, so राइजोबियम नाम का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दैट वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाए। और उसी सॉइल से फिर नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है एंड देन द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन गैस आल्सो। ओके, एंड एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड फिर उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स ओनली, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब प्लांट्स से अपना फूड प्रिपेयर किया है नाइट्रोजन का गैस यूज करके, सो हम सभी एनिमल्स फिर उसके बाद इसी फूड में से अपनी अमाउंट को, जो नाइट्रोजन की अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है, उसे हम इनटेक करते हैं थ्रू दीज प्लांट्स। More than 90% of all nitrogen fixation is affected by the microorganism known as bacteria. Okay, इतना 90% से भी ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इफेक्ट होता है जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। Then next we have carbon dioxide. So carbon dioxide is used by the green plants. Carbon dioxide गैस का कौन यूज करता है? ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए by the process of photosynthesis. Okay. Then next we have water vapor also in our air. So water vapor is added to the air by the evaporation of water from the seas and other water bodies. तो water vapor जो है वो हमारे air में किसके थ्रू? water के evaporation के थ्रू ऐड होता है। एंड वाटर का इवेपोरेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम द सीज एंड द अदर वाटर बॉडीज प्रेजेंट इन अवर नेचर। ओके, सन की रेज के थ्रू इन सभी का इवेपोरेशन होता है एंड ये वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एयर में मिक्स हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन द वेदर एंड एयर में प्रेजेंट इस वाटर वेपर की वजह से ही वेदर चेंजेस आते हैं एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एंड हमारी एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके,
Next, what we have some other gases also present in the air, like hydrogen, ozone, neon, argon, helium. These are also some gases which are present in the air. Now, next, talk about properties of air. So, we have seen that oxygen present in the air is needed for burning. जैसे कि हमें पता है हमारे एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो बर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है. Okay, it supports what? Combustion. Now let us know about some other properties of the air also. Okay, so first of all we have the what? Air has weight. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो एयर की डिस्कस करी गई है दैट इज एयर हैज वेट. ओके, तो क्या एयर के पास वेट होता है? लेट अस चेक इट by performing this simple activity which they have shown you. What do you have to do for this? You have to take two deflated balloons of the same size. आपको दो deflated balloons लेने हैं same size के, sorry balloons से footballs. Okay, you have to weigh them on a beam balance. तो दोनों ही फुटबॉल को एक beam balance पे weigh किया जाएगा. Now fill one of them with air. फिर में से किसी भी एक फुटबॉल के अंदर आपको air fill करनी है and then weigh them again. What do you find? Which football is heavier? ओके, सो उसके बाद जब आप दोबारा उसको वे करेंगे आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि कौन सी फुटबॉल ज्यादा हैवियर है. द फुटबॉल विद एयर. सो एक्चुअल में जिस फुटबॉल के अंदर आपने एयर फिल करी है इट इज हेवियर एज कंपेयर टू द डिफ्लेटेड फुटबॉल. ओके, एंड दिस शोज दैट एयर हैज वेट. सो एक्चुअल में उस फुटबॉल के अंदर हमने एयर को ही तो फिल किया जिसकी वजह से क्या हुआ, फुटबॉल का वेट इंक्रीज हो गया. एंड नाउ वी कैन से दैट एयर हैज वेट. You can see in this picture also that is there's a beam balance with deflated and inflated balloons. ये inflated football है and this is deflated football. Okay, so इन्हें हमने एक beam balance पे रखा है and it can be easily seen by this picture कि ये जो inflated वाली football है इसके अंदर air filled होने की वजह से ये ज़्यादा heavy है and वो deflated football which has no air it is lighter. Okay, now second property of air is that air takes up space. Air space भी occupy करती है. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि air is what? Air is a type of matter only. Why? Because matter is anything which has mass and occupies space, right? Matter is anything which has mass and takes up space. So इसी को प्रूव करने के लिए कि air matter है, हमने अब ये देख लिया कि air का weight होता है. Now what we are going to check that air occupies space also. Okay, see, for that what you have to do, you have to take a tub and fill it with water. आपने tub लिया और उसके अंदर water को fill किया. Now then you have to take an empty glass tumbler, turn it upside down and dip the whole of it into the water tub. फिर उसके बाद आपको एक empty glass लेना है, empty glass tumbler लेना है और उसको upside down आपको turn करके उस पूरे के पूरे ग्लास को वाटर टब के अंदर डिप करना है. तो क्या वाटर उस ग्लास के अंदर एंटर करेगा? नो. नाउ जेंटली टिल्ट और प्रेस इट डाउन फॉर आप थोड़ा सा आपको क्या करना है उसे टिल्ट करना है देन उसके बाद आपसे नीचे डिप करने की कोशिश करेंगे. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल सी दैट वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास इन द फर्स्ट केस बट इट इट डज इन द सेकंड अटेम्प्ट. तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पहली बार हमने बिल्कुल उसे अपसाइड डाउन डिप करने की कोशिश करी थी वाटर उस ग्लास टम्बलर के अंदर एंटर नहीं कर पाया. लेकिन जब हमने उस ग्लास टम्बलर को हल्का सा टिल्ट किया एंड तब उसके बाद क्या हुआ, पानी इजिली उस टम्बलर के अंदर एंटर हो गया. वाई? बिकॉज द ग्लास वॉज फुल ऑफ एयर दैट रिलीज व्हेन वी टिल्टेड द टम्बलर. ऐसा क्यों हुआ? सेकेंड केस में क्यों ग्लास के अंदर पानी चला गया? बिकॉज पहले वाले केस के अंदर क्या ग्लास के अंदर एयर फिल थी जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर नहीं कर पाया. राइट? लेकिन जब हमने टम्बलर को टिल्ट किया एयर गेट escaped out and the water got entered inside the glass tumbler. So this activity shows that the air occupies space. Now the third property of air is air exerts pressure. See, we have seen that air has weight. अभी हमने देखा कि air का weight होता है and anything that has weight exerts pressure also. So that means air also exerts pressure. And कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या weight होता है वो प्रेशर भी जरूर exert करती है. So क्योंकि एयर का वेट होता है सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर. वी कैन सी द यूज ऑफ एयर प्रेशर. हम इस एयर प्रेशर के यूज को देख सकते हैं डॉक्टर सिरिंज में, वाटर गन में एंड ऑल्सो व्हेन वी सक जूस थ्रू अ स्ट्रॉ. ओके, सो लेट अस डिस्कस द वेज इन विच एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. नंबर 1, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एयर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है. कैसे? लेट अस प्रूव इट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी अगेन.
व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर। अगेन आप एक ग्लास टम्बलर लेंगे एंड उसको वाटर से फिल करना है अप टू द ब्रिम। ओके, मेक श्योर, इस चीज का ध्यान रखना है कि एयर बबल्स जो है उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू कवर द टॉप ऑफ द टम्बलर। अब उस टम्बलर के टॉप को आपको एक कार्डबोर्ड पीस के थ्रू कवर करना है एंड फिर उसे प्रॉपरली आप अपने हैंड्स के थ्रू प्रेस करेंगे एंड उसके बाद उस टम्बलर को अपसाइड डाउन यू हैव टू टर्न। नाउ रिमूव योर हैंड। अब आप अपने हैंड को रिमूव करें, व्हाट हैपेंस, क्या होगा? यू विल सी दैट द वाटर फ्रॉम द टम्बलर डज नॉट फॉल डाउन। आप क्या देखोगे कि उस टम्बलर के थ्रू जो वाटर है वो नीचे की तरफ गिर ही नहीं रहा है। दिस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन द अपर डायरेक्शन। इससे क्या शो होता है कि एयर जो है अपर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से वो वाटर वाटर टम्बलर के थ्रू नीचे नहीं गिरता है। ओके, नाउ एयर प्रेशर exerts pressure in the downward direction also। अब एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर को exert करता है। कैसे? सी, अगेन यू हैव टू टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। अब आपने खाली प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके बाद एक पिन लेकर आपको उसके बॉटम सरफेस में होल करना है। देन सील द होल। फिर आप उसको एक टेप के थ्रू उस होल को सील भी करेंगे एंड उसके बाद बॉटल को आपको पानी के साथ फिल करना है। स्क्रू द कैप ऑफ द बॉटल टाइटली। इसके बाद आप उस बॉटल की कैप को टाइटली लगाएंगे एंड उसके बाद उस सील को ओपन कर देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जैसे ही आपने अब उस बॉटल के कैप को ओपन किया, वहां पे क्या होगा? व्हेन द बॉटल इज कैप देयर इज नो एयर प्रेशर। जब आपने उस बॉटल के ऊपर कैप को लगाया था, तो वहां पे एयर प्रेशर जो था वो वाटर के ऊपर नहीं था। ओके, एंड इसकी वजह से वाटर डज नॉट फॉल डाउन। बट जैसे ही आपने उस कैप को ओपन किया, एयर प्रेशर जो वाटर में था वो वहां पे एक्सर्ट हुआ एंड जिसकी वजह से वाटर नीचे की तरफ क्या करने लगा? फॉल डाउन करने लगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एयर ने उस वाटर के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट किया एंड जिसकी वजह से वाटर falls down in the downward direction. Then third is air exerts pressure in all direction। एयर सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे क्या एक्टिविटी है? आप टेक अ बलून, एक बलून लेना है और उसके अंदर एयर ब्लो करनी है एंड तब तक आप उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे जब तक आपको ये नहीं लगता कि आप उस बलून के अंदर अब और ज्यादा एयर फिल नहीं कर सकते हो, until and unless you have to continue blowing air inside that balloon। Okay, now what happens? अब क्या होगा? The balloon bursts because of the pressure of the air। जब आप उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एयर को फिल कर दोगे, बलून जो है बर्स्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? अंदर जो एयर है उसके प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से। तो एज़ यू कंटिन्यू टू ब्लो, जितनी देर तक आप उसे ब्लो करोगे, एयर जो है बलून की वॉल्स को, अंदर एयर जो जा रही है, बलून की वॉल्स को चारों तरफ, चारों डायरेक्शंस में क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। एंड फाइनली वो क्या कर देगी? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा, बलून की वॉल्स जो हैं ब्रेक हो जाएंगी। तो दिस शोज़ दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ओके, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनफैक्ट सभी डायरेक्शन में एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। So these were the properties of what? Air. Okay, that air has mass, air occupies space, and air exerts pressure in all the possible directions. And let us talk about the another important factor for the survival of life, that is known as water. So water is also important as air only for our survival. Okay, about 70% हमारे अर्थ सरफेस का अराउंड 70% सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है एंड वाटर केवल रिवर्स या ओशंस एंड सीज में नहीं प्रेजेंट, बल्कि एज अ अंडरग्राउंड वाटर आल्सो देयर इज वाटर प्रेजेंट। So we have already read in the previous classes that water changes state on heating and cooling। जैसे कि हमने अपनी previous classes में भी डिस्कस किया है कि वाटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है either on heating or cooling। Evaporation is a process in which water on heating changes to water vapor, and condensation is a process in which water vapor on cooling changes to liquid form water। तो evaporation क्या है? Evaporation एक ऐसा process है जहाँ पे water heat provide करने से vapor में change होने लगता है एंड कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर वेपर कूलिंग प्रोवाइड करने से अगेन वाटर में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवापोरेशन। कंडेंसेशन इवापोरेशन प्रोसेस का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक impurities in water। The water we get from river, pond, well, etc. is impure. It is due to impurities that get dissolved in water called as soluble impurities, as well as impurities that do not dissolve in water called insoluble impurities।
एक्चुअल में स्टूडेंट्स हमें जो ये डिफरेंट वाटर बॉडीज से पानी मिलता है ये इम्प्योर होता है। ओके, अब ये इम्प्योर क्यों हुआ? ये इम्प्योर दो तरीके की इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एंड देयर आर सम इम्प्योरिटीज व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती है उन्हें बोलते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। एंड बोथ these soluble and insoluble impurities makes the water impure. Okay, जैसे कि एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू सॉल्ट, शुगर, सोडियम एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के, बिकॉज दे डू गेट डिसॉल्व इन द वाटर। एंड sand, mud, etc. These are the examples of insoluble impurities because they do not get dissolved in the water. Right? This water, अब ये जो वाटर है, इम्प्योर वाटर है, इसे प्योरीफाई करना जरूरी है सो दैट इसे ड्रिंकिंग या अदर पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाया जा सके। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। पानी में से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के हम मेथड सीखेंगे। नंबर वन, वी हैव सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इन दिस मेथड, अब इस मेथड में क्या किया जाता है, इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर हम वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के मिक्सचर्स को लेते हैं एंड इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, एंड इसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है कुछ फ्यू मिनट्स के लिए, यानी कि इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। ओके, सो जब आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे, द हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जितनी भी हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो उस बीकर के बॉटम में सेटल हो जाएंगी, and this process is called sedimentation process, right? After this, इसके बाद what you will see, the drain the clean water carefully into another beaker. See, जितनी भी आपकी heavy insoluble impurities थी वो नीचे settle हो गई, that is known as decantation, sedimentation. and जो अब आपका water था, प्योर वाटर, वो ऊपर बचा है, ठीक है, वो प्योर वाटर को आप क्या करेंगे, उस क्लीन वाटर को, नॉट इज दैट इज प्योर वाटर, दैट इज क्लीन वाटर, तो उस क्लीन वाटर को आपको बहुत केयरफुली एक दूसरे बीकर में ड्रेन करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिकेंटेशन। एंड इस तरीके से आपको इसी दूसरे बीकर में केयरफुली पोर करना है सो दैट जो नीचे सेटल्ड इम्प्योरिटीज है वो डिस्टर्ब ना हो, राइट? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन प्रोसेस। The next method we have is filtration. In this method, insoluble impurities. अब इस मेथड में insoluble impurities like sand, इन्हें हम सेपरेट करते हैं वाटर में से यूजिंग अ फिल्टर पेपर। एक्चुअल में अ कोन ऑफ फिल्टर पेपर इज मेड एंड केप्ट इनसाइड अ फनल। हम एक फिल्टर पेपर का कोन बनाते हैं और उसको फनल के अंदर रखा जाता है। फिर इसके बाद वाटर एंड सैंड के मिक्सचर को उस फनल के थ्रू पोर किया जाता है बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड इनटू अ बीकर। सो द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जब हम ऐसा करेंगे, वो जो सैंड है पानी के अंदर वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होगी एंड इट विल रिमेन बिहाइंड ऑन इट, वो पीछे वापस रह जाएगी एज अ रेसिड्यू, राइट? द वाटर नाउ क्लियर फ्रॉम प्योरिटीज। अब वो जो पानी है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है वो आपका बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ओके, जो पानी नीचे कलेक्ट हुआ है दैट इज फिल्ट्रेट एंड द सैंड फनल पेपर में रह गई ऊपर, दैट इज नोन एज रेसिड्यू। So these were some methods of removing insoluble impurities from water. Now let us talk about removal of soluble impurities. अब पानी में से soluble impurities को remove करने के कुछ methods को discuss करेंगे. Number one, we have evaporation method. So as I told you, evaporation method में water को heat provide करी जाती है to convert into the water vapor state. तो इस मेथड में एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर soluble impurities है, like salt and water, उसे हीट किया जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाएंगी। Then next we have distillation. In this method, both impurities and clean water is obtained unlike evaporation. अब डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, दोनों ही इम्प्योरिटीज एंड क्लीन वाटर, यानी कि इम्प्योरिटीज एंड क्लीन वाटर दोनों ही चीजें आपको इसकी तरह इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं मिलती है। इस डिस्टिलेशन में एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, ओके, इस मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है लाइक सॉल्ट एंड वाटर, इसे एक फ्लास्क के अंदर हीट किया जाएगा। आफ्टर सम टाइम द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, कुछ देर बाद वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वो वाटर वेपर में चेंज होगा एंड इम्प्योरिटीज जो हैं दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क। ओके, द वाटर वेपर, फिर उस वाटर वेपर को हम एक कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे। उस कंडेंसर में
कोल्ड वाटर जो है अंदर सर्कुलेट हो रहा होगा, जो उस वाटर वेपर को कूल कर देगा। ओके, एंड ऑन कूलिंग द वाटर वेपर, कूलिंग वजह से क्या होगा, वाटर वेपर दोबारा से वाटर में चेंज होगा और एक सेपरेट फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। देन डिस्टिल वाटर, अभी जो डिस्टिल वाटर मिला है हमें, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज या जर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड इस वाटर को मेनली हम कार, बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड मेडिसिन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक विच वी हैव इज ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो फॉर हेल्दी लिविंग क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग। हेल्दी लिविंग के लिए हमें हमेशा क्लीन वाटर का यूज करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग, बिकॉज इम्प्योर वाटर के अंदर स्टूडेंट्स जर्म्स होते हैं विच कैन कॉज वेरी सीरियस डिजीजेस। So we should always drink clean and pure water only. Now there are some methods which can be used to purify the water. Number one, we have boiling. Boiling सबसे simplest way है to purify water. In this method, इस मेथड में हमें वाटर को 10 to 15 मिनट्स के लिए हीट करना पड़ता है, so that उसके अंदर जितने भी germs हैं they could be killed and the water will be what? Made pure. नेक्स्ट मेथड वी हैव क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन मेथड के अंदर क्लोरीन को हम वाटर में ऐड करते हैं टू किल द जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। Okay, and last we have water purifier. So electrical water purifiers are also used in many places to get pure water. Okay, electrical water purifiers का भी use किया जाता है काफी सारे places पे, so that to get pure water. Okay, so that was all about the chapter which we have completed over here. Okay, I hope you must have understood the importance of air and water in our life and some of the methods by which we can make the water pure. These two factors are our life. They are very necessary. So what we should do, we should follow such methods so that we can uh, avoid or prevent the pollution of these two things, right? We should make our environment clean and healthy by conserving air and water. Okay, that's all for today. Let's meet in the next class and then keep going well, and thanks to everyone.